بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ وسیم لوہار کا بیٹا تھا اور میں زمیندار کی بیٹی زارا بی بی۔ یہ لوگ جدی پشتی ہمارے خدمتگار تھے۔ جب وہ چھوٹا سا تھا تو اس کی ماں حویلی کے در و دیوار اپنے دوپٹے سے صاف کیا کرتی تھی، تبھی اس کا آنا جانا رہتا تھا۔ گھر کی خواتین بچہ سمجھ کر اس سے پردہ نہ کرتی تھیں۔ وقت کاغذ کے پرزوں کی طرح اڑتا گیا اور پھر وہ بچہ نہ رہا۔ 18 برس کا گبرو جوان ہو گیا، تب بھی گھر کے اندر اور باہر کے کام وہی کرتا تھا۔ کسی اور نوکر کو حویلی میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ میں اس کی معصوم صورت پر دلہار بیٹھی۔ محبت میں پہل میری طرف سے ہوئی۔ وہ بیچارہ اس جذبے کے اسرار اور رموز سے ناواقف تھا۔ میرے اظہار الفت پر ہکا بکا رہ گیا۔ ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ رشتہ برادری سے باہر نہ کرتے تھے۔ اپنوں میں رشتہ نہ ہوتا تو لڑکی کی شادی قرآن سے کر دی جاتی۔ یوں ماضی میں کئی لڑکیاں اس رسم کی بھینٹ چڑھ گئیں اور بن بیاہی بوڑھی ہو گئیں۔ انہوں نے زندگی بھر آئینے میں اپنی شکل نہ دیکھی۔ میں اس رواج کی بھینٹ نہ چڑھنا چاہتی تھی۔ قدرتی اور فطری زندگی جینا چاہتی تھی، مگر والد اور بھائیوں کے ہوتے یہ ناممکن تھا۔ میرے کئی اچھے رشتے آئے مگر غیر برادری کے باعث رد کر دیے گئے، کیونکہ میرے وارث اپنی زمین کا بٹوارا نہ چاہتے تھے۔ شاید یہی سبب تھا کہ مجھے وسیم سے عشق ہو گیا، حالانکہ وہ مجھ سے 2 برس چھوٹا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت، دلکش سراپا اور سیاہ گھنگریالے بال میری تباہی کا سبب بنے اور میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش میں تڑپنے لگی۔ وسیم اپنی حیثیت پہچانتا تھا، کسی صورت نہ چاہتا تھا کہ ہم عشق و محبت کی خوابناکیوں میں کھو جائیں، لیکن میں اس پر مر مٹی تھی۔ جب موقع ملتا کہتی تھی، وسیم میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے کہیں لے چلو یا پھر مجھے مار ڈالو۔ وہ سمجھاتا، زارا بی بی، میں آپ کے بابا کے در کا نوکر ہوں، آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ اگر حویلی میں کسی نے سن لیا اور بڑے زمیندار کو خبر ہو گئی تو وہ مجھے شکاری کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ تب میں کہتی تھی، افسوس وسیمے، تم کتنے بزدل ہو، میں لڑکی ہو کر نہیں ڈرتی اور تم مرد ہو کر ایسی بزدلی کی باتیں کرتے ہو، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ سچ ہے، بزدلوں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس طرح کہہ کر میں نے اسے دلیر بنایا، حوصلہ دیا، بالآخر وہ بھی میری محبت کے دام میں گرفتار ہو گیا۔ میرے والد اپنے علاقے کے بڑے زمیندار تھے۔ ان کی زمین سب سے زیادہ تھی، اس لیے روب داب بھی زیادہ تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی ان کے آگے بول سکے۔ وسیم ان کی حکم عدولی کا تو سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ لیکن میں بہت عاقبت نااندیش ہو گئی اور اس کے ساتھ بھاگ چلنے پر مصر ہو گئی۔ ظاہر ہے ہماری شادی حویلی میں رہ کر تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ 8 برس کی تھی کہ مجھے پردے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس طرح باہر کی دنیا میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ہم خواتین کا گھر سے باہر قدم رکھنا محال تھا۔ میرے لیے گھر قید خانہ اور حویلی جیل تھی۔ ان حالات میں کوئی گھر سے فرار کا نہ سوچے تو اور کیا کرے؟ تاہم کوئی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ زارا بی بی گھر سے بھاگ سکتی ہے۔ جب اپنے مسئلے کا کوئی حل سمجھ میں نہ آیا تو میں نے وسیم کے ساتھ گھر سے نکل جانے کا پختہ عزم کر لیا۔ اور پھر ایک رات جب والد شہر گئے ہوئے تھے اور بھائی زمینوں پر تھے، میں اس کے ہمراہ حویلی سے چلی گئی۔ کسی کو یقین نہ آتا تھا کہ زارا ایسی جرت کر سکتی ہے۔ یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ میرے باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کیونکہ انہونی بات ہو گئی تھی، لہٰذا گاؤں کے لوگ بھی سکتے میں آ گئے تھے۔ رفتہ رفتہ خاموشی کا بھرم ٹوٹنے لگا اور گاؤں کے لوگ سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات تھی، وسیم اور زارا کی خیر نہیں۔ بڑے زمیندار اور ان کے بیٹے ان دونوں کو قتل کرا دیں گے۔ لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے، ہم دونوں چھپے ہوئے تھے اور وہ ہماری تلاش میں بری طرح سرگرداں تھے۔ ابا جان نے روپیہ پانی کی طرح بہا دیا کہ کسی طرح ہم ہاتھ آ جائیں۔ ایک بار جو دھبا ان کی عزت پہ لگا تھا اسے ہمارے خون سے دھو دیا جائے۔ 6 ماہ دن رات کی تلاش کے بعد بالآخر ہمارا سراغ مل گیا۔ دور کے دیہات میں ہم ایک فقیر کی جھونپڑی میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اچانک ایک روز میرے بھائی وہاں آ گئے۔ بھائیوں کو دیکھ کر میں کانپنے لگی تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور قسم کھائی کہ خاطر جمع رکھو، ہم تمہیں مارنے نہیں آئے ہیں بلکہ معاف کرنے آئے ہیں۔ بابا جان بہت بیمار ہیں، وہ تم سے آخری ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔
कानों पर यकीन न आया। सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तो निकल सकता था, मगर मेरे वालिद और भाइयों की सोच में ऐसी तब्दीली नहीं आ सकती थी कि वो नौकर के साथ घर से भागने पर मुझे माफ़ कर देते। मैंने सोचा कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। भाइयों के कस्में खाने और बार बार यकीन दिलाने पर मुझे इनकी बातों का यकीन करना पड़ा। तभी मैंने बता दिया कि वसीम साथ वाले खेतों में मजदूरी करने गया है। उसी वक्त वो भी आ गया और मेरे भाइयों को देखकर खौफ से आंखें बंद कर लीं। मैंने कहा, वसीम आंखें खोल दो, मेरे भाई कुल्हाड़ियाँ लेकर नहीं आए हैं, बल्कि वो हमें माफ़ करने आए हैं। मैंने जल्दी जल्दी अपने भाइयों के लिए सालन तैयार किया, लेकिन इन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। कहा कि इस वक्त तक भूखे रहेंगे जब तक तुम अब्बा जान से मिल नहीं लेती, वो बिस्तरे मर्ग पर पड़े हैं। इन्होंने वसीम को भी साथ चलने को कहा। यूँ हम दोनों को लेकर वो मामू के गांव आए, जहां मेरी वालदा की हवेली थी, जो नाना की तरफ से इनको जहेज़ में मिली थी। ये हवेली अभी तक मामू के तसरुफ़ में थी। आला फर्नीचर और कीमती सामान से मज़ीद इस रिहाइशगाह को वो अपने गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल करते थे। शायद इन्होंने मामू को भी एतमाद में ले लिया था। मामू हमसे मिलने नहीं आए, लेकिन इनके नौकर ने बताया कि अब आप लोग इस हवेली में कुछ दिन क़याम करेंगे। मैंने भाइयों से सवाल किया कि क्या हम अपने गांव नहीं जाएंगे। वो कहने लगे, वहाँ गांव वाले बहुत बातें बना चुके हैं, तुम्हें वहाँ ले जाना ठीक नहीं है। अलबत्ता वालिद साहब और वालदा साहिबा 2-4 रोज़ में यहाँ आकर तुम लोगों से मिलेंगे। तब तक बेफिक्र रहो, खाओ पियो और हर किस्म के खौफ को दिल से निकाल दो। इनकी बातों को अब भी वसीम शक को शुभा की नज़रों से देख रहा था। इसने कई बार मुझे समझाया, अभी वक्त है, इनका एतबार ना करो और यहाँ से भाग निकलो, वरना ये ज़रूर हमें ख़त्म करके रहेंगे। मेरे भाई चले गए और हम दोनों को शिशोपंच में छोड़ गए। मामू भी नहीं आए। मैंने इनके नौकर से कहा कि इनको कहो मुझसे मिलने आए, मगर नौकर ने जवाब ला कर दिया कि फ़िलहाल वो नहीं आ सकते, आपकी वालदा के हमरा यहाँ आएंगे। माँ फिर माँ होती है, औलाद कितना बड़ा जुर्म कर ले, इसकी ममता जुदाई में तड़पती ज़रूर है। जब माँ भी कई रोज़ तक ना आई तो मुझे यकीन हो गया दाल में कुछ ज़रूर काला है। मैंने मामा के नौकर की मिन्नत समाजत की, हमें बताओ तो सही असल मामला क्या है। माँ नहीं आई और मामू भी नहीं आते, ये सब लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं। करमदीन बाबा को शायद हम पर तरस आ गया। इसने कहा, बेटे तुम अपने शोहर के हमरा यहाँ से कल रात के पहले पहर निकल जाना और चाहे दरिया में छलांग लगा दो या कुएं में, लेकिन जल कर मरना बहुत अज़ियतनाक होता है। क्या वो हमें जलाने वाले हैं? मैंने तड़प कर पूछा। इस हवेली को कल आधी रात के वक्त इत्तफाकिया आग लगेगी, ये तय है। मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुम दोनों को आग के भरने से पहले साथ वाले गांव तक पहुँचा दूँ। जो ही तुम खेत पार करोगे, वहाँ मेरा बेटा घोड़ा लिए खड़े होगा। तुम इस घोड़े पर कहीं दूर निकल जाना। मुझे यकीन है कि तुम्हारे मामू ने देख भी लिया तो वो चुप रहेगा, तुम्हारे भाइयों को खबर ना होगी। ऐसा ही हुआ। जब करमदीन बाबा ने हमें खेतों के पार पहुंचा दिया तो वहाँ उसके बेटे ने घोड़ा हमारे हवाले किया और हमें जंगल की तरफ हाँक दिया, जो डाकुओं का इलाका कहलाता था। कुछ आगे जाकर हम डाकुओं में घिर गए। इन्होंने हमें घोड़े से उतार लिया तो हमने अपनी बब्ता इनको सुना दी। तभी एक डाकू ने पनाह की पेशकश कर दी। हम इस पेशकश को कबूल ना करते तो और क्या करते। हम जंगल में थे और उधर हवेली को आधी रात के बाद आग लगाकर गांव वालों को ये खबर दे दी गई कि ज़ारा और वसीम अपने मामू के पास पनाह लेने गए थे, मगर भाइयों को मंजरी हो गई तो इन्होंने इस हवेली को नज़र आतिश करवा दिया जहां ये दोनों मौजूद थे। तभी गांव वालों ने कहा, देखा हम ना कहते थे कि ऐसा होकर रहेगा, और ऐसा ही हो गया। भला बड़े ज़मींदार की गैरत ये क्यों कर गवारा कर सकती थी कि उनकी बेटी नौकर के साथ भाग कर ज़िंदगी गुजारे और वो चैन से जिए। मुद्दत तक हम इस डाकू की पनाह में रहे जिसने हमें पनाह दी थी। मैं इनका खाना पकाती थी और वसीम इनकी चाकरी करता था। यूँ हम जिंदगी के दिन कैदियों की मानंद गुजार रहे थे, क्योंकि अब हम डाकुओं के गुलाम थे। इनकी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जा सकते थे। मैं नाज़ो पली थी, अब पछताती थी कि मेरे एक जज्बाती फ़ैसले से क्या हो गया था। इससे कंवारी रह जाना क्या बुरा था। अब तो नाक और छिचोंदर वाला मामला था। निगलते बनती थी और ना उगलते। मैं हर वक्त यही दुआ करती थी कि या अल्लाह हमें सुकून की ज़िंदगी दे और इन जराइम पेशा अफराद से निजात दे कि आज़ादी बड़ी नेमत होती है। ये बेरहम लोग सिंध की तरफ जाने वाली गाड़ियों को असले की ज़ोर पर लूट लेते थे,
फिर लूटा हुआ माल आपस में बांट लेते। ये वारदातें आए दिन होती थीं जिसमें अक्सर बेगुनाह मुसाफिर मारे जाते। पुलिस भी बेबस थी क्योंकि ये सारा इलाका लूट मार करने वालों से भरा हुआ था। यही वजह है कि यहाँ पर मुसाफिर बसें और गाड़ियाँ पुलिस की गाड़ियों की मय्यत में कारवां की सूरत में गुजरती थीं। ये डाकू शाहरा को दरख्तों के बड़े बड़े तने बिछाकर बंद कर देते और फिर लूट मार करते। जब वो किसी वारदात से कामयाब लौटते तो खूब जश्न मनाते। तमाम रात हला गुला, चर्च की चस्कियाँ और में नोशी होती। ये रात हम पर अजाब बनकर टूटती। मैं रोटियां बनाते बनाते हलकान हो जाती और बेचारा वसीम इनके काम कर कर के थक जाता था। एक रोज़ वो डाकू जिसने पनाह की पेशकश की थी लूट मार की वारदात में ज़ख्मी हो गया तो दूसरा डाकू उसे वीराने में छोड़कर भाग आया क्योंकि पुलिस की भारी नफरी मौके पर आ पहुंची थी। अंधेरे और दलदल की वजह से पुलिस वाले सहराब को ना देख सके। एक दिन पहले खूब बारिश हुई थी जिसकी वजह से ज़मीन कीचड़ भरी हो चुकी थी। जब वसीम को पता चला कि सोहराब के साथी इसको वीराने में छोड़कर आ गए हैं तो उसने सोहराब की मदद की ठान ली। जान पर खेल कर वो वहाँ गया और सड़क से कुछ फासले पर सोहराब को ज़मीन पर बेहोश पाया। इसकी टांग में गोली लगी थी, वो चलने से माजूर था, खून भी काफ़ी बह गया था। वसीम ने अपनी चादर से टांग को बांधा और सोहराब को सहारा देकर बड़ी मुश्किल से बस्ती तक लाया। डाकुओं के ठिकाने से पहले एक बस्ती आती थी, वहाँ सोहराब को एक घर में लिटा कर वो मालिक मकान के हमरा हकीम के पास गया और उसे अपने साथ ले आया जिसने इब्तदाई तिबी इमदाद दी। यूँ सोहराब की जान बच गई। इस पुरखलूस खिदमत से वो डाकू जो हमारा मालिक था इस कदर खुश हुआ कि जब वो चलने फिरने के काबिल हुआ तो उसने ना सिर्फ हमें आज़ाद कर दिया बल्कि इतनी रकम भी दी कि हम आसानी से किसी बड़े शहर में जाकर रिहाइश इख्तियार कर सकते थे और 6 माह गुजार सकते थे। हम लोग सियालकोट आ गए जहाँ वसीम की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो डेरा गाजी खान के जागीरदार का करकंदा था। वो हमें डेरा ले आया और इस जागीरदार के रूबरू ले गया। इस बड़े आदमी की पनाह में आकर हम बेफिक्र हो गए। हम इसकी हवेली के रखवाले बन गए जिसके एवज़ हमें रोटी, कपड़ा और ज़रूरत की अशिया मैसर आ गई थीं। 10 बरस यहाँ रहे। इस दौरान पता चला कि मेरे वालिदैन इंतकाल कर गए हैं। हमें रहने को क्वार्टर मिला हुआ था। जागीरदार के इलाके से बाहर जान के खौफ से न जाते थे। अलबत्ता वसीम ज़मींदार के काम से सियालकोट जाया करता था। एक रोज़ वो सियालकोट गया तो वापस ना आया। उसके साथ ज़मींदार के 2 मुलाजिम भी गए थे। इन्होंने आकर बताया कि वसीम को किसी ने गोलियां मारकर मौके पर ही ख़त्म कर दिया और वो लोग फ़रार हो गए। मैं इसकी लाश पर रोने वाली अकेली थी। खुदा ने मुझे औलाद से भी नहीं नवाजा था। मैं ज़मींदार के ज़नान खाने की पसंदीदा मुलाजमा थी। एक बड़े ज़मींदार की बेटी ने आफियत इसी में जानी कि इस हवेली को छोड़कर कहीं न जाए जहाँ ज़िंदगी की अमान मिली हुई थी। आज तक मैं यही हूँ, वो लड़की जिसके कभी खिदमतकार थे आज खुद एक बड़े आदमी की बेगमात की बावफा खिदमतकार है, जिसकी खिदमत से सब खुश हैं लेकिन किसी को क्या मालूम कि मेरे दिल पर क्या गुजरती है। लड़की का एक गलत कदम इसको मंजिल से हज़ारों मील दूर फेंक देता है और वो उम्र भर पछताती रह जाती है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे शेयर और लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू कहानी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।